مثبت صحافت کے فروغ میں ایک اور مثبت قدم بحریہ ٹاؤن اور راولپنڈی اسلام آباد کے دیگر مقامات کے بعد روزنامہ میٹرو واچ اسلام آباد کا راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی بیورو آفس کا قیام کر دیا گیا، جس کی باقاعدہ پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض بیورو چیف مصطفیٰ خان اور نوجوان صحافی کالم نگار سید عمر گردیزی نے ادا کیے۔ تقریب کی صدارت سابق صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ نے کی، جبکہ مہمان خصوصی صدر نیشنل پریس کلب شکیل انجم تھے۔ دیگر خصوصی مہمان گرامی میں سیکرٹری انور رضا، چیف ایڈیٹر روزنامہ میٹرو واچ زاہد فاروق ملک، صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب قاضی شفیق، پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب ترجمان غلام علی خان، سابق صدر این پی سی طارق چوہدری، صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز ندیم شیخ، ملک طاہر جاوید اور معروف سینئر سربراہان نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر سردار اعجاز ولایت، مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سردار عتیق گل اور اینکر اسکالر شہباز عباسی، بیورو چیف بول نیوز غلام مرتضیٰ، سینئر صحافی عامر بٹ، بابر ملک اور شہروز طاہر سمیت دیگر صحافتی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر قائد صحافت افضل بٹ، شکیل انجم اور انور رضا، قاضی شفیق، زاہد فاروق اور غلام علی خان صاحب نے، ندیم شیخ، شمیم حیدر، سید طارق چوہدری دیگر نے خطاب کرتے ہوئے چیف ایڈیٹر روزنامہ میٹرو واچ زاہد فاروق ملک کی ملک کی صحافتی خدمات کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ پہلے تو تمام آپ کا شکریہ کہ آپ سب لوگ تشریف لائے، اور زاہد فاروق ملک صاحب سے بھی ہماری دوستی ہے، لیکن انہوں نے جس نئے آئیڈیا کے ساتھ اخبار نکالا، اس کے آئیڈیا نے ہمیں ان کا گرویدہ کر دیا کہ میرے گھر میں بہت اخبار آ جاتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اگر ان کے دفتر میں کوئی پروف ریڈر نہیں ہے اور وہ میری بیوی ہے تو میرا خیال ہے یہ بات کرتے وہ صبح سارے ڈان نیوز سارے اخبار آتے ہیں، ادھر صبح میٹرو واچ پکڑنا ہوتا ہے، اور پھر میں تو زیادہ رات 3-4 بجے سوتے ہیں جا کے، تو صبح اٹھنے سے پہلے اس نے غلطیوں کی نشاندہی کی ہوتی ہے کہ میں نے سب کو بتانا ہے کہ آج آپ کے اخبار میں بھی غلطی ہے۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک فیملی پیپر ہے۔ سٹی پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کا پرچہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے، مثلا میں نے اگر دیکھنا ہے کہ آج ٹرینوں کے اوقات کیا ہے تو کہاں سے دیکھوں گا؟ میٹرو واچ۔ میں فوری طور پر بچے سے کہوں یار میٹرو واچ دیکھیں آج انڈیا کے ریٹ کیا ہے، مجھے کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل نہ اخبار بتائے گا نہ کوئی چینل بتائے گا، کہاں سے پتا چلے گا؟ میٹرو واچ پڑے گی، آپ کو ٹرینوں کے اوقات کا پتا چلے گا، آپ کو جتنی شہر سے کوچیں جاتی ہیں کس وقت پہ آئے گی، کس وقت پہ جائے گی، آج شہر میں سبزی کا ریٹ کیا ہے، گولڈ کا ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، پولٹری کا ریٹ کیا ہے، یہ ساری چیز۔ دوسرا، آپ اگر آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس کو مرچ مسالے سے لے کر بین الاقوامی خبریں ملیں گی، لیکن ایک چیز غائب ہے، وہ ہے عام آدمی کے مسائل۔ 12 صفحات میں سے شاید ہی کوئی ایک خبر آپ کو عوامی مسائل کی مل جائے، عوامی مشکلات کی مل جائے۔ وہاں وزراء کی لیڈ ہوگی، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، چیف جسٹس۔ اس اخبار کا کمال یہ ہے کہ یہ عام آدمی کا اخبار۔ جب سے میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں میں وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں جس سے زاہد فاروق ملک کی شخصیت کو دکھانا۔ کافی میں پریشان رہا، یہ شخصیت سامنے آئی تو شاید 2-4 دنوں میں اسے کر سکوں، ڈیفائن کر سکوں۔ زاہد فاروق ملک ایک ملٹی ڈائمینشنل شخص ہے جو ایک وقت میں 7-7 8-8 معاملوں میں لڑتا ہے۔ تقسیم ہے کہ آج انگلینڈ بیٹھا ہوگا، کل یہاں ہوگا، پرسوں کو یہ دنیا ساری میں پھرتا رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا آج دعویٰ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سرحدوں سے نکل کر یہ شخص پورے ملک میں پھیلے گا، اور اس طرح پورے ملک کے گلی کوچوں میں اس کے بیورو ہوں گے اور لوگ اس سے محبت کریں گے، کیونکہ اس کا مشن بہت عظیم
पर नहीं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इसमें आज इन्होंने वादा किया था अगले हफ्ते जो होगा ना इफ्तिताह में जरूर करूँगा। अब हालत ये है कि हर हफ्ते इफ्तिताह होता है और हर हफ्ते उन्होंने मुद्दे गिने होते हैं कि फलां को किस इफ्तिताह में बुलाना है। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुस्तफ़ा साहब आपको भी कि आप लोगों ने हकीकी मायनों में जो पिसा हुआ तबका है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। मेट्रो वाच को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि आप देखिए जो लोग जिनको बड़े चैनल या बड़े अखबार निगलेक्ट करते हैं, आप उन लोगों की खबरों को आगे लेकर चलते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह शकील साहब ने कहा कि आप वाकई एक जिन हैं, क्योंकि मैंने भी आपके साथ सफ़र किया और आप मेरा ख्याल 2 से 3 घंटे सोते हैं और ज़्यादा का जज्बा है आपको। मुस्तफ़ा साहब आपके लिए भी दुआ करूँ कि आप सही मायनों में इस अखबार की नुमाइंदगी करें और जो भी लोगों की तवक़्क़ुआत है आप लोगों से, आप उनकी तवक़्क़ुआत को पूरा करें, क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं अक्सर लोगों की बड़ी तवक़्क़ुआत है। लोग हमें अपना मसीहा समझते हैं और वाकई जैसे जब माजी में इसको कहा जाता था कि जर्नलिज्म एक इबादत की हैसियत रखता है, अब इसमें प्रोफेशनलिज्म आ गया है। तो अब हम लोगों का जो फर्ज है वो ज़्यादा है कि हम लोगों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें और ज़ाहिद फारूक मलिक जैसे जो कारकुन हैं उनके हाथ मजबूत करें। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि आप इस पुरवकार तकरीब में आए और आपने ज़ाहिद फारूक मलिक और मुस्तफ़ा साहब जैसे लोगों को इज्जत बख्शी। मैं भी आपको मेट्रो वाच ने 2011 में शुरू किया था और इसके पीछे यही था कि 2004 की बात है, मुझे कमरे से बाहर मुझे निकाल दिया गया। फिर मैं 2011 में था 10 में, तो मैं इलाहाबाद में था। फिर 2011 में चूँकि मैं साथ साथ ATV में भी काम कर रहा था, तो वहाँ से भी निकाल दिया गया, क्योंकि वो बंद हो गया था ATV। उन्होंने कहा जी कि जब हम दोबारा अगर हमें लाइसेंस मिला तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस वक्त मुझे 25 साल हो गए थे। मैंने कहा नहीं, आप कोई ऐसा ही इदारा बनाते हैं जो वर्कर्स का इदारा हो। तो मिशन मेरा यही था कि ऐसा इदारा हो जहाँ पे किसी को कोई निकाल ना। तो ये दर्द था मेरा, मैं एक ऐसा इदारा बनाऊँ छोटा सा, और मेरे पास वसाइल नहीं थे। लेकिन मैंने फिर सोचा यही कि एक छोटा सा इस तरह का बना लेते हैं। पूरी दुनिया घुमा था, हर शहर का अखबार था। पाकिस्तान में भी मैंने देखा, अगर मंडी बहुद्दीन भी गए हैं तो उनका अपना अखबार था, वज़ीराबाद गए हैं उनका अपना अखबार था, गुजरावाला जाएँ, नौशहरा जाएँ, जहाँ वहाँ के मकामी अखबार थे, इस्लामाबाद का मकामी अखबार नहीं था। तो मैंने शुरू ये किया कि ऐसा करते हैं कि इन वसाइल के अंदर रहते हैं एक छोटा सा मैंने शुरू किया। 2 चीज़ें मेरे मद्देनज़र थी। एक तो जिसको इस अदारे में अल्लाह ताला मेरा बाबू बनेगा, वो उसको कोई निकाल नहीं सकता। और दूसरा तनख्वाह का सोचा था कि तनख्वाह हम बर वक्त देंगे, और 10 साल हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी। जो नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं उनके हर शहर में एक ब्यूरो होता है। ये चूँकि शहर का अखबार था, तो मेरा ये विजन था कि मैं हर यूनियन कौंसिल के अंदर और हर सेक्टर के इस्लामाबाद के अंदर मैं अखबार जिसका ब्यूरो था। जब मैंने थोड़े दिन पहले DHA का स्टार्ट किया था, इससे पहले आपने देखा चंदौर, संजानी, आप E11 जाएँ, उधर भी हमारे यहाँ मौजूद है। आप G14 जाएँ, हर जगह पे हमने ऑफिस बनाए। अगर सिर्फ आप अडियाला रोड पे जाएंगे तो हमने 3 ऑफिस बनाएंगे। तो आज उसी सिलसिले की एक है कि हमने सेक्टर टाउन में मुस्तफा साहब काफ़ी देर से मेरे साथ कह रहे थे जी मैंने ऑफिस बनाना है, इधर ऑफिस बनाना है। तो भी 2-3 दिन पहले इन्होंने कहा जी नहीं जी आपने ऑफिस का इफ्तार करना है। मैं नहीं करेंगे, मेरे काजी हैं वो इफ्तार करेंगे कि इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने इसलिए फिर ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया कि यही मेरा सरमाया है और इन्हीं की वजह से इस इदारे में काम था। मैं शमीम हज़रत सैयद साहब मेरे उस्ताद भी हैं, हमारे जर्नलिज्म में भी उस्ताद हैं और मेरे बच्चों के भी उस्ताद। मेरे बच्चे सारे इनके पास पढ़े हैं। मैंने
विरासत समझा कि जो मेरा कुनबा है वो मेरे इस दफ्तर का इख्तियार है। बड़ी खास बात करूँगा, उन्होंने एक नया पैटर्न दिया। बाकी अखबारों में जो मेन लीडरशिप होती है उनकी खबर फ्रंट और बैक पे लगती है, और जो लोकल लीडरशिप पिंडी और सिटी की होती है, इस्लामाबाद पिंडी की, वो अंदर पेज 2 पे होती है। लेकिन इन्होंने लोकल लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए फ्रंट और बैक पे उनकी खबरें लगाते हैं, और जो बड़ी लीडरशिप को पेज 3 और पेज 2 जो है वो मुजाफात के रखते हैं। ये बड़ी अच्छी इनकी काविश है, ये नया ट्रेंड है जो हम लोकल लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए ये किया है। इसको मैं अप्रिशिएट भी करते हैं, और बात करता हूँ भी इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से देखा जाता है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आज के इस फंक्शन पे मेट्रोवाद का यहाँ पे जो ऑफिस खुला है, क्योंकि सहाफ़त का और बिजनेस कम्यूनिटी का भी जो है चोली दामन का साथ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ हमेशा कोऑपरेट किया। कोई भी हमारी कोई मीटिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसको बड़ा अच्छा आपने जो है वहाँ पे कवरेज दी। आपकी वसादत से जो है बिजनेस कम्यूनिटी जो है वो अपना काम करती है और लोगों तक बर वक्त मैसेज भी पहुँचती है। तो इस तरह काम जो है वो हमेशा उसको सराहा जाता है। मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करने पर, और इसी तरह जो है मोहब्बत भी जो है मुख्तलिफ सेक्टर में बढ़ती है। नाज़रीन ने कहा कि सहाफ़त में आला इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, और हम चीफ़ एडिटर ज़ाहिद फ़ारूक मलिक और ब्यूरो चीफ़ मुस्तफ़ा ख़ान के साथ खड़े हैं। हमारे साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ जब 2014 के अंदर साना मॉडल टाउन हुआ था, हमें याद है कि गोलियों की बौछार थी, उसके बावजूद वो मीडिया ही था, मीडिया के लोग ही थे जो उन गोलियों के सामने खड़े होकर जो तमाम वाक़े को कैप्चर भी कर रहे थे और उसको रिपोर्ट भी कर रहे थे। और हम ये समझते हैं कि इतना बड़ा वाक़या जिसको पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स के अंदर और तमाम अखबारात ने उसको कवर किया और लाइव कवरेज दी उसको, उसके अंदर आज तक हमें इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके तमाम कैमरे उसके विटनेस हैं। और अगर शायद प्रेस उस वक्त न होती तो वो मामला तो कब का दब चुका होता, लेकिन उसके बावजूद साथियों का और मीडिया का शुक्रिया कि उन्होंने उस मामले को हाईलाइट रखा, हमें हर मौके के ऊपर सपोर्ट किया। और बीइंग पाकिस्तान अवामी तहरीक प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब, मैं सब आप का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, रिगार्ड भी करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम शाहिद फारूक मलिक साहब को कि आपकी जो बातें सुनी है माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ है कि आपने बड़ा ज़ीरो से शुरू होकर आप इतना बड़ा स्टेप लिया और आपने शहर के लोगों की खिदमत की। और मुस्तफ़ा भाई को खुसूसी मुबारकबाद कि आपने इतने अहम इदारे के साथ आपको एक प्रमोशन भी मिली और आपकी वाबस्ती भी हुई। शाहिद फारूक मलिक साहब भट्ट साहब 2001 में पिंडी आए और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी गॉल्फ क्लब पिंडी में। तो ये आके बैठे, उस वक्त हमारी रिश्ता हुआ करती थी, रिश्ता भी है, उसका फिजा भी हुआ करती थी। तो मैंने इनसे पूछा भाई आपके अंदर कौन सा है? इन्होंने बताया था कि मेरा नाम शाहिद फारूक मलिक है, मैं खबर से हूँ, वो अभी मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे। तो मैंने इन्हें कुछ आमदेद कहा और मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर सहाफ़त में किसी ने जिन को देखना है, जिन्नात का किसी ने अगर नज़ारा करना है तो वो जिन की सूरत में सहाफ़ी है जिसका नाम शाहिद फारूक मलिक है। मेरी दुआ है अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की दे, इससे हमारी सहाफ़ती बरादरी जो है उसको रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। और इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद रखा। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो क्या माल मलाल का पूछते हो, जो उनसे हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। तो मैंने जो भर पाया वो शाहिद फारूक मलिक की शक्ल में मैं बहुत कम उम्र में 21 साल की उम्र में मैं भुट्टो साहब के साथ वहाँ से मैगजीन निकलता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो मेरी उम्र शायद 21 साल थी, मैं NSF का जनरल सेक्रेटरी था, मिराज अहमद खान साहब प्रेसिडेंट थे। तो उस ज़माने में उन्होंने मुझे वहाँ दिया और मैं उसके बाद फिर डेली जरूरत यहाँ से निकाला गया, ग्वाल मंडी में जंग और मैं उसको मैंने एडिट करता रहा। बहुत एक अच्छा दौर गुजरा सहाफ़त का। लेकिन अब ये सब जब देखता हूँ तो जिस तरह मैंने फैज़ साहब का कहा, तो अब मेरा सरमाया जो है वो माशाल्लाह शाहिद फारूक मलिक है और मैं इन पर नाज भी करता हूँ, पसंद भी करता हूँ। और यकीनन ये हमारा इस रावलपिंडी का बहुत ही एक सच्चा घड़े जितना सच्चा मोती है। मेट्रो न्यूज़पेपर इन्होंने इसके लिए कोशिश की और हमारी राय वगैरह इस पर मुशावरत भी चलती रहती है। ये अब तक और बहुत ही हौसले वाले सहाफ़ी हैं जिन्होंने कम अज़ कम अपने अखबार में ये बात कहने की जसारत की है कि ना किसी को निकाला जाता है और ना किसी के पैसे। और दूसरी बात ये है कि अब हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आती है
इन्होंने तो अपना फ़र्ज़ कर दिया। अब आप लोगों को जो फ़र्ज़ दिया जा रहा है उसमें ज़िम्मेदारी ये आती है कि मेट्रो को आपने किस तरह से हकीकी तौर पे आम लोगों का, आम शहरियों का, गली मोहल्ले का अखबार बनाना है। ये जो आप आज ब्यूरो ऑफिस का इफ्ताह कर रहे हैं मुस्तफ़ा साहब, इनके एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं, इनके एरियाज़ में कितने रोड कंस्ट्रक्शन हैं, ये कौन कौन से महकमे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको सिर्फ मेरी दुआ ये होती है और मेरी एक दरख्वास्त ये होती है कि आप सिर्फ उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, उस एरिए को संभालने के लिए, लोगों को एक एक शख्स को ये पता चले कि यहाँ मेट्रो आया है तो हमारे ये मसाइल ठीक हो गए हैं, हॉस्पिटल्स में हमें अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, हमारी सड़कें बन गई हैं, हमारे दीगर काम हो गए हैं। तो वो एज एन फिलंथ्रोपिस्ट आज जर्नलिज्म को लिया जा रहा है कि ये खिदमत आज वो वाली जर्नलिज्म नहीं रहेगी और दूसरी मेट्रो तो है ही खिदमत। हमने जो पढ़ा है सिटीजन जर्नलिस्टशिप जो है वो सिटीजन जर्नलिज्म में सिर्फ खिदमत होती है गली मोहल्ले के लोगों की। और ये बड़ी बात है कि बहुत से अखबार आए, बहुत से बड़े बड़े सेटों में अखबार निकाले, लेकिन जब उन्होंने देखा ये अखबार निकालना एक कुआं है और उस कुएं में पैसे फेंकने पड़ते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसका कोई रिटर्न भी नहीं मिलता। तो लोग आते हैं, भाग जाते हैं। बड़े बड़े सेट चले गए, बड़े बड़े जो उनके बारे में उनके पीछे बड़ी हिमायत थी। ये बड़ी एक अनोखी बात है, अनोखी मिसाल है कि शाहरुख साहब ने कम मिसाइल के बावजूद अखबार निकाला, उसको मुस्तहकम किया और अब उसको चला रहे हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े इख्तराएँ निकाली हैं दुनिया में। इससे इन्होंने कहा दुनिया में हर जगह पर, हर मुल्क में, अमेरिका, बरतानिया में, जापान में बड़े जो मॉडर्न सोसाइटी हैं वहाँ पर जो सिटीजन जर्नलिज्म है, जो शहर के अखबार हैं, जो अपने इलाके को कवर करते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। जो वर्नैकुलर जर्नलिज्म है उसकी बड़ी अहमियत है। हमारे यहाँ सिर्फ कौमी अखबार को, कौमी चैनल को अहमियत दी जाती है। इन्होंने न सिर्फ दारुल हुकूमत से अखबार निकाला बल्कि उसको कामयाब किया और कामयाब करने के बाद ये जो आइडिया है कि उसके जो ब्यूरोज़ हैं, रीजनल ब्यूरोज़ में हैं, वो महलों में ये आइडिया सोचा बहुत लोगों ने है, अहमद रावत को नहीं कर सकता है। बात यह है कि हमारे लिए, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने सब एक मिसाल कायम कर दी है। अगर कोई अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ किसी एक रस्ते में चलता रहे, अल्टीमेटली किसी मंजिल पर पहुँच जाता है। सबको फ़ख्र है कि आपने एक अखबार निकाला, उसको कामयाब किया और कामयाबी से नजर चला रहे हैं, तो उसको एक्सपेंड करें। रावलपिंडी चैम्बर इस सिलसिले में ख़ासतौर पर जर्नलिस्ट के लिए मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अहम रोल है रावलपिंडी चैम्बर का, वो हमेशा से अदा करता रहा है। और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी है, हमें सहाफ़ी बरादरी की, इन्होंने हमेशा रावलपिंडी चैम्बर के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे तरीके से आगे तक पहुँचाया और हमें बड़े बेहतरीन सपोर्ट की है, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पे आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कवरेज रावलपिंडी चैम्बर के तमाम इवेंट्स की मलिक साहब अपने अखबार इस मेट्रो वॉच में दे रहे थे, मलिक साहब आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इस सिलसिले में जब कभी अगर आप समझते हैं रावलपिंडी चैम्बर आपके किसी काम आ सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है, हमारे दरवाजे हमेशा सहाफ़ी बरादरी के लिए हमेशा खुले हैं। जब कोई काम हो, एनीथिंग, वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस। ज़ोहराने की तकरीब के बाद सदर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील अंजुम, साबिक सदर NPC तारिक चौधरी, सदर अवामी तहरीक शुमाली पंजाब काजी शफीक, गुलाम अली ख़ान, मलक ताहिर जवेद दीगर ने रावलपिंडी मेट्रो वॉच ब्यूरो ऑफिस सेटेलाइट टाउन का इफ्तिताह किया और केक काट कर बाकायदा ऑफिस का आगाज़ किया। आखिर में मेहमान गरामी ने जाहिद फारूक मलिक, ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान और सईद उमर गर्देजी को रोज़नामा मेट्रो वॉच के ब्यूरो ऑफिस के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की और इस बात पर जोर दिया कि सहाफ़त चूँकि पैगम्बराना पेशा है, इसके ज़रिए अवामी खिदमत, इनके मसाइल के हल का फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि मुआशरा मुस्बत सहाफ़त की तरफ गामज़न हो। इस मौके पर मेहमान गरामी ने ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान और नौजवान सहाफ़ी कॉलम निगार सईद उमर गर्देजी की इस काविश पर हौसला अफजाई के लिए खुसूसी क्लैपिंग की। कैमरामैन हसन अली ख़ान के साथ शीरी सैयद, 65 न्यूज़, रावलपिंडी।